So in the previous class we have discussed the questions based on the range और उसी sequence में if x be a real number then value of the expression x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4, that value is required. So x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4, keep that equals to y and then form a quadratic in terms of x. ठीक, it is x square into 1 minus y, it is minus 3x minus 3xy. टर्म्स शिफ्ट किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं टर्म्स और x में क्वाड्रेटिक माइनस 3x माइनस 3xy प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 0. x में quadratic, x is real, d is greater than equals to 0. So d is b square minus of 4 चेक कीजिए सेम बन रहा है क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर ही बन रहा है क्या ये. 9 टाइम्स 1 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस ऑफ 16 टाइम्स 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, so it is becoming minus 7 times 1 minus y whole square greater than equals to 0. हाँ कहीं कुछ एरर है. माइनस 3x, ओके आई हैव टेकन माइनस साइन कॉमन, वही मैंने कहा तो गड़बड़ हो जाएगा. माइनस 3x कॉमन लिया तो इट विल बिकम 1 प्लस वाई. यस, बी स्क्वायर minus 4ac. Now it's okay. We have shifted all the terms in the left hand side and after taking the minus 3x common it is becoming 1 plus y. Nine times 1 plus y whole square minus 16 times 1 minus y whole square is greater than equals to 0. Solve कर लिया इसको. ठीक है, ये तो सॉल्व किया हमने. सिंपल इसको सॉल्व कर रहे हैं. 1 प्लस वाई होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab and it is 1 minus y whole square 1 plus y square minus 2y. So 9y square minus of 16y square, that is minus of 7y square, right? Sorry, 50. And then what is the constant term? Minus 7 greater than equals to 0. We are just keeping d greater than equals to 0. 7y square minus of 50y plus 7 less than equals to 0. 7y square minus 50y plus 7 less than equals to 0. Factorize करेंगे. What are the factors here? 7y minus 1, y minus 7 less than equals to 0. And y is an element of 7 minus 1 or 1 y minus 7, so it is becoming what? 1 by 7 to 7. 1 by 7 to 7 is the final result. We'll check for if x square is equals, a coefficient of x square is 1 minus y here. If 1 minus y becomes 0, so 1 minus y becomes 0, so y equals to 1. What will happen for y equals to 1? What value you are getting for x? Any absurd value तो नहीं आ रही ना. y equals to 1 रखने पर what value you are getting for x? तो x you are getting 0, that's fine, real number, कोई दिक्कत नहीं है. So result is going to be 1 by 7 to 7.
ये चेक करने के पीछे लॉजिक ये है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जब हम लिखते हैं, वैल्यू ऑफ x क्या लिखते हैं, माइनस क्वाड्रेटिक जब आप सॉल्व कर रहे हो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2a इज देयर इन द डिनोमिनेटर एंड a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो विच विल मेक द डिनोमिनेटर जीरो। तो हम चेक कर लेते हैं कि जब डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तब x की कोई रियल वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, दैट इज द ओनली पॉइंट देयर। रेंज के क्वेश्चंस जब डिस्कस करते हैं तो देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ इनइक्वालिटीज, बट अगेन फिर मैं आपके सामने लिखता हूँ, इफ fx इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर x प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 10 and 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x plus 10, and if I ask you the range of that function, yeah, value of that function, if I ask you the range of or value of that function, क्वेश्चन जब आप रेंज बेस्ड सॉल्व कर रहे हो तो मैंने आपको बार बार कहा कि देयर कुड बी डेफिनेटली डिफरेंट वेज टू सॉल्व दैट फंक्शन टू फाइंड आउट द रेंज। 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x, as far as domain is concerned, it is all real values because a to the power x is defined for every real value of x, so domain तो all real values है, उसमें दिक्कत नहीं है। but if you observe this 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x, क्लू तो आपको तुरंत मिल जाता है और वो ये मिलता है कि you have to do the use of inequality am greater than equals to gm। 5 कैसे क्लू मिला, तो 5 raised to power x और 5 raised to power minus x, if you take the gm ज्योमेट्रिक मीन अगर आप लेते हैं तो that will become 1, दोनों टर्म कैंसिल होंगी, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। we have discussed, पूरी क्लास हमने ली थी इसके ऊपर, 5 raised to power x और 5 raised to power minus x, these two terms we have selected। रिक्वायरमेंट क्या होती है, बिफोर अप्लाइंग am greater than equals to gm you will have to check that those numbers must be positive real numbers, पॉजिटिव होना चाहिए। एज फार एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंसर्न, दोज आर पॉजिटिव ऑलवेज, ग्रेटर देन जीरो होते हैं, यस दोज आर पॉजिटिव। तो इन दोनों में हमने अप्लाई किया एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। ये तो क्वेश्चन को देख के आपको डिसाइड करना होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एम जीएम आपको सॉल्व करना है, ऐसा तो होगा नहीं। 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x by 2 is greater than equals to geometric mean, and geometric mean is 5 raised to power x into 5 raised to power minus x and square root of that, so 5 raised to power x into 5 raised to power minus x, ये कैंसिल होके 1 होगा। इसी को देखते हुए तो हमें क्लू मिला था कि ज्योमेट्रिक मीन विल बिकम 1, या कैंसिल होके या कोई सिंपल टर्म में आ जाएगा, तो वी कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ एम जीएम। 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x is greater than equals to 2, greater than equals to 2। तो अगर केवल, अच्छा एम इक्वल्स टू, बोले सर आपने इक्वल टू साइन कैसे ले लिया, कैन यू एक्सप्लेन। नंबर जब डिस्टिंक्ट होते हैं उस केस में एम ग्रेटर देन जीएम लिखा जाता है, नंबर अगर डिस्टिंक्ट हो तब एम ग्रेटर देन जीएम लिखते हैं, सेम हो तब हमें, सेम अगर पॉसिबल है तो हम उस केस में इक्वलिटी लेते हैं, तो सेम पॉसिबल है। When x is equals to 0, 5 raised to power 0 will become 1, तो उस केस में हमने इसलिए m greater than equals to gm लिया है। तो 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x is greater than equals to 2, so 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x plus 10 is clearly greater than equals to 12। so range of that function आप आसानी से कंक्लूड करोगे 12 to infinity। so yes, we have used concept of am gm here। कभी क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, अभी हम ट्रिगो की भी बात करने वाले हैं, और उसके बाद में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव्स आल्सो, ठीक है ना। लाइकवाइज if it is 2 raised to power x plus 3 raised to power x plus 2 raised to power minus x plus 3 raised to power minus x minus 5, that is the function there, and if you have to find out the range of that function, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, just by observation itself you can conclude 2 raised to power x, 3 raised to power x, 2 raised to power minus x, 3 raised to power minus x को देखते ही आपके दिमाग में आएगा concept of am gm, या you are going to use the inequality of am gm।
यू आर गोइंग टू टेक ऑल 4 नंबर्स एट ए टाइम बिकॉज सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है और उसमें एमजीएम आपने अप्लाई किया. Divide by 4 is greater than equals to fourth root of, it is fourth root of raised to power 1 by 4, fourth root of, डायरेक्ट 1 लिख दूं, कहाँ दिक्कत है. चलिए खुश हो जाएंगे. Greater than equals to 4, the range is 4 to infinity, but it is minus 5 is also there. So instead of writing 4 to infinity, it is going to be minus 1, because 5 is minus 5 is also there. तो 4 से infinity होता, लेकिन minus 5 is also there, तो minus 5 कर दिया. minus 1 to infinity. There are questions based on the range, based on the again trigonometric function, and which is again there in class 11, जो class 11th में भी पढ़ाया जाता है. The function is fx is equals to 3 cos x plus 4 sin x, and if it is 3 cos x plus 4 sin x और आपसे पूछा जाता है range of that function या value of that function, तो 3 cos x plus 4 sin x, it is defined everywhere. 3 cos x plus 4 sin x is there, so it is defined everywhere, defined for every real value of x. But if range is asked, that range is what? A cos theta plus b sin theta. Range of that function, range ही तो बोलते हैं हम maximum और minimum value. That maximum value is root over a square plus b square, and minimum value is minus of root over a square plus b square. A cos theta plus b sin theta या a sin theta plus b cos theta, that is minus of root over a square plus b square to root over a square plus b square, and 3 cos x plus 4 sin x is there. So 3 cos x plus 4 sin x, root over a square plus b square is simply 5 और ये minus 5. So directly we can say that range of that function 3 cos x plus 4 sin x is minus 5 to 5. Minimum value of that function, trigonometric function, is minus 5 and maximum value is 5. आपके दिमाग में आएगा सर कैसे आ जाता है ये भी देख लीजिए, कोई खास बात नहीं है, बट ये फैक्ट है जो आपको हमेशा तैयार होना चाहिए. और इट इज़ नॉट देयर इन क्लास 12th, इट्स अ फैक्ट ऑफ क्लास 11th ओनली. बेसिक जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ते हैं तब इसे बताया जाता है. बट इवन देख लीजिए उसका डेरिवेशन. इफ y इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a and b आर सम कांस्टेंट वैल्यूज देयर. थीटा दैट एंगल इज सेम देयर, cos थीटा sin थीटा. व्हाट वी हैव डन हियर, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. multiplication and division by root over a square plus b square. क्यों मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ए एंड बी आर सम कांस्टेंट वैल्यू और ए और बी को साइड्स लेते हुए वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. इनफैक्ट ए और बी को साइड्स लेते हुए, बेस और परपेंडिकुलर या चेंज भी कर सकते हैं आप इसे. एंड डेफिनेटली द रीजन इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज क्लियरली बिकमिंग द हाइपोटेन्यूज देयर. लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा. ए पता है, बी पता है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पता है आपको. सो ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नोन, दैट मीन्स कंप्लीट ट्राइंगल इज नोन. या उस ट्राइंगल के एंगल्स आपको, ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता है, यू कैन फाइंड आउट एनी एंगल. ये आपने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया. एंड डेफिनेटली ए बी एंड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर मैं जरूर लिख सकता हूं ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट? कॉस अल्फा. एंड b upon root over a square plus b square is sin alpha. So that y is root over a square plus b square
and it is cos theta cos alpha plus sin theta sin alpha. So cos theta cos alpha plus sin theta sin alpha, cos a cos b plus sin a sin b is cos of a minus b. So y is equals to root over a square plus b square cos theta minus alpha. बोले सर आपने ये कोई रटने वाली बात है क्या कि a को बेस लेना और b को, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. यू कैन टेक दिस साइड एज a एंड दिस एज b. बोले सर चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम साइन, इट विल बिकम कॉस, कोई परेशानी नहीं है. अगेन इट विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट विल बी एन एंगल साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. द रीजन इज, बोले दिक्कत कैसे नहीं, दिक्कत इसलिए नहीं है, कॉस थीटा माइनस अल्फा, रेंज ऑफ कॉस थीटा इज -1 to 1. cos थीटा माइनस अल्फा की रेंज है -1 से 1, तो माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द रेंज फॉर ये क्या है, दैट इज नथिंग बट y. समझ में आ रही क्या बात आपको? अगर ये साइन अल्फा होता तो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस अल्फा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा होता, कोई दिक्कत नहीं थी. साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की भी रेंज -1 से 1 है. तो रेंज फाइनली जो आने वाली है फॉर द एक्सप्रेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट इज द डेरिवेशन पार्ट जो मैंने आपको बता दिया, दैट इज देयर इन क्लास 11. अजीब सा एकदम से आ गया ऐसा नहीं है, इट इज देयर इन क्लास 11 से 12th में आप आए. बट ये रिजल्ट जो है इसको डेरिवेशन की जरूरत नहीं लगना चाहिए, ये रिजल्ट हमेशा आपको तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए. ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, रेंज ऑफ दैट माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट्स द मैक्सिमम वैल्यू एंड माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द मिनिमम वैल्यू. Alpha is a known angle there. The reason is a, b and root over a square plus b square are the known sides. सारी values पता है हमें, तो वो angle alpha पता है, known है, unknown नहीं है. If f of theta is 5 cos theta minus 12 sin theta plus 10, and if I ask you the range of that function, clearly domain की जहाँ तक बात करें, domain is all real value. It is defined for every real value of theta. 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा प्लस 10. और रेंज अगर मैं पूछता हूं आपसे, रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एज वेल एज इन बिटवीन सारी वैल्यूज, तो 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रिजल्ट a cos थीटा प्लस b sin थीटा. डायरेक्ट लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको. रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 and square root of that is 13 and it is minus 13 to plus 13, but plus 10 is also there, plus 10 is also there, so adding plus 10 all sides. 5 cos theta minus 12 sin theta plus 10 less than equals to 23 and minus 3, adding 10 both sides, all sides in fact. If it is 10 cos 2 theta plus 11 sin 2 theta minus 5, can you tell me the range of that? So 10 cos 2 theta plus 11 sin 2 theta minus 5. So what you will observe here that okay, these two angles are same, fine, कोई दिक्कत नहीं है, but these two angles must be same, ये बहुत ज़रूरी बात है. 10 cos 2 theta plus 11 sin 2 theta minus 5, so 10 cos theta plus 11 sin 2 theta can be written as, the range of that can be written as, the highest value here, the maximum value is root over a square plus b square, which is 121 plus 100, 221, and square root of that, the least value is minus of root over 221, and minus 5 is there, so minus 5 subtract कर दिया सब जगह.
दैट्स नथिंग बट द रेंज। बट इस फैक्ट को यूज करते समय इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जल्दबाजी में आप 3 cos 2 थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 11 and directly you applied this result. You cannot. 3 cos 2 theta minus 4 sin theta plus 11, you cannot apply this result here. The reason is theta and theta, these two angles must be same ना, ये 2 theta है और 2 theta, that's fine, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने same result apply किया। 4 theta और 4 theta है तो that's fine, but if one of the angle is 2 theta, one of the angle is theta, या दोनों एंगल डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो आप इस अप्रोच को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मत करिएगा उस केस में। Now the question is, you have to find out the range of the function, या value of the function of 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 10. So it is the angles को जब आप ऑब्जर्व करोगे, और वैसे भी cos theta sin theta नहीं है यहाँ पे, it is cos theta and cos theta plus pi by 3. जो रिजल्ट अपने पास अवेलेबल है that is for a sin theta plus b cos theta. तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने, अच्छा व्हाट अबाउट द डोमेन, तो डोमेन इज क्लियरली ऑल रियल वैल्यूज, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो इस एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 5 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस पाई बाय 3 cos a प्लस b cos a cos b, पहले सॉल्व करना होगा इसको, cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b प्लस 10, ठीक है ना, cos ऑफ a प्लस b दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, 5 cos theta plus that is cos 60 degree, and cos 60 degree 1 by 2 3 by 2 cos theta minus of sin 60 3 root 3 by 2 sin theta plus 10, 13 by 2 cos theta minus of 3 root 3 by 2 sin theta plus 10। और अभी आप जरूर ऑब्जर्व करें, नाउ डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ a cos theta minus b sin theta, अभी कोई दिक्कत नहीं, दीज टू एंगल्स आर सेम देयर। सो 13 by 2 cos theta minus of 3 root 3 by 2 sin theta, definitely it can be written as root over a square plus b square right, it is coming as 169 by 4 plus 27 by 4 196 by 4 and square root of that will be 7, है ना, 7 ही आ रहा है, so it is minus 7 to 7 13 by 2 cos theta minus 3 root 3 by 2 sin theta। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, minus 7 to 7 but plus 10 is also there, so when you add plus 10 there, so it is minus 7 plus 10, 3 to 17, 3 to 17 is the range of that। आसानी से बात बन जाती है, सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने में क्या था, cos ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया और टर्म्स को अरेंज किया। नाउ द क्वेश्चन इज 3 cos x plus 5 times sin of x minus pi by 6 plus 7, and again you have to find out the range of that। First of all you are going to solve that 3 cos x plus 5 times sin a cos b minus cos a sin b, cos x plus cos 30 डिग्री, ये जाएगा 5 रूट 3 बाई 2 sin x माइनस ऑफ 5 बाई 2 cos x प्लस 7, it will become
3 minus 5 by 2 cos x by 2 plus 5 root 3 by 2 sin x प्लस 7। चेक करिएगा प्लीज इसको, ठीक है क्या? अच्छा 3 6 माइनस 5 1 by 2, ठीक है क्या? ओके, सो इट इज नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जिसके लिए रेंज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना हो रहा है ये? 25 इंटू रूट 19, फाइन, माइनस ऑफ रूट 19 प्लस रूट 19, बट प्लस 7 इज ऑल्सो देयर। दैट इज नथिंग बट द रेंज, और शायद सभी लोगों का रिजल्ट यही रहा होगा, डायरेक्ट है। Now look for the question that function that mapping is from R to S. R to S मतलब R is nothing but the domain and S is nothing but the codomain, and that function is given as sin x minus root 3 cos x plus 5. Clearly R is for real number, sin x minus root 3 cos x plus 5. Domain of that function is all real values. It is given in the problem that that function is an onto function. ये function onto function है, and you have to find out S which is codomain there. डायरेक्टली कोडोमेन फाइंड आउट करने का कोई तरीका नहीं होता, या तो कोडोमेन क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हो तब तो बात अलग है। यू कैन नॉट फाइंड आउट द कोडोमेन, यू कैन फाइंड आउट द रेंज। रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, बट द टू टर्म्स यू आर अवेयर ऑफ विच इज ऑनटू और इनटू। इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो दैट फंक्शन इज ऑनटू। रेंज इफ इट इज लेस देन कोडोमेन, if range is not equals to codomain then it is into function। क्वेश्चन में प्रोवाइड किया उसने onto function है, और onto function है इसका सीधा सा मतलब range is equals to codomain। you have to find out the codomain, and that codomain is nothing but the range, and that means simply you have to find out the range of that function, और कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्टली रेंज नहीं बोलते हुए उसने कह दिया है कि कोडोमेन फाइंड आउट करें, प्रोवाइडेड onto फंक्शन है। तो sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 5, रेंज फाइंड आउट करने में कहां दिक्कत आएगी हमें? sin x माइनस रूट 3 cos x, a sin थीटा प्लस b cos थीटा पता है हमें, माइनस ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ वी कैन से इट इज 1 plus 3 4 square root of that is minus 2 to plus 2, plus 5 is also there, plus 5 is also there, so adding plus 5 everywhere in that inequality. So that is coming as minus 2 plus 5 3 and 3 to 7। ठीक, जो रेंज है दैट इज नथिंग बट द कोडोमेन, दैट इज नथिंग बट द ऑनटू फंक्शन। कुछ टर्म्स हो रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। वी हैव डिस्कस अबाउट द वन वन मेनी वन इनटू ऑनटू। ऑनटू के केस में रेंज कोडोमेन के बराबर है, इनटू के केस में रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। वन वन के केस में डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस, और मेनी वन के केस में मोर देन वन एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम इमेज। उसके बारे में तो अभी हम वो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बट कुछ टर्म्स और मैं समझा दूं आपको। एवरी ऑनटू फंक्शन इज सर्जेक्टिव। ऑनटू फंक्शंस का एक और नाम होता है और वो होता है सर्जेक्टिव फंक्शंस।
एवरी ऑन टू फंक्शन इज नोन टू बी द सर्जेक्टिव फंक्शन. जो भी फंक्शन ऑन टू है उससे सर्जेक्टिव. दीज आर द टर्म्स जो आपके नॉलेज में होना चाहिए. सर्जेक्टिव, तो ऑन टू फंक्शन इज सर्जेक्टिव. इफ दैट फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू हो तो बोले सर आपने कहा ऑन टू सर्जेक्टिव है. हाँ बिल्कुल है सर. ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज सर्जेक्टिव फंक्शन इफ इट इज 1 1 ऑन टू. उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे. तो बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो सर्जेक्टिव बट 1 1 ऑन टू इज, दीज आर द नेम्स जो पता होना चाहिए और रिलेवेंट है, काम में आएंगे बिल्कुल. 1 1 ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन टू बी द बाइजेक्टिव. और ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव भी है, ठीक है, बट इफ इट इज 1 1 ऑन टू तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा. If it is 1 1 into इंजेक्टिव. ये 3 टर्म्स हैं जो आपके नॉलेज में होना चाहिए. सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव. एवरी ऑन टू फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन. जो भी फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू है मतलब रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो वो सर्जेक्टिव है. कुछ क्वेश्चंस में अभी सुन लो इस बात को. अभी यहां पे क्या हुआ, ऑन टू इंस्टेड ऑफ ऑन टू अगर वो लिखता इज सर्जेक्टिव, इज फाइंड एस, फाइंड द कोडोमेन, तो सर्जेक्टिव लिखा है. अब अपने को पता ही नहीं सर्जेक्टिव, अपन ने कभी सुना ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. सर्जेक्टिव है, ऑन टू है, तो आपने तुरंत रेंज बताई और खत्म बात. ठीक है ना. तो एवरी ऑन टू फंक्शन इज सर्जेक्टिव इफ इट इज 1 1 ऑन टू. उसका एक और नाम है वो बाइजेक्टिव. एक और नाम है मतलब 1 1 ऑन टू का तो सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, बिल्कुल है. ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव है और 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि मेनी 1 ऑन टू का और कोई नाम नहीं होगा. ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव, बस इतना है. ठीक है ना. एंड इफ इट इज 1 1 इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन में दैट्स इंजेक्टिव फंक्शन. ये टर्म्स हैं जो ध्यान रखिएगा. We have to find out the domain and range of fx is equals to 7 minus x p x minus 3. यहाँ पे ये जो p वाला फंक्शन है दैट इज फॉर NPR. NPR NCR वी आर कंफर्टेबल होना चाहिए. क्लास 11th में देखते हैं आप अरेंजमेंट के लिए NPR विच इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. इफ इट इज NCR विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n minus r factorial. What values n and r can take? डोमेन फाइंड आउट करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो ठीक है. n और r की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? n और r की किन वैल्यूज के लिए फंक्शंस ये NPR और NCR डिफाइंड होते हैं? This n must always be a natural number या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दीजिए आप. नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 है ना. नेचुरल नंबर्स, n मस्ट बी नेचुरल नंबर्स. व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ r? r की जो वैल्यूज होंगी दोज आर गोइंग टू बी 0 to n. बट जब 0 से n लिख रहा हूं मैं तो ये मेरे नॉलेज में है या होना चाहिए इंटीग्रल वैल्यूज ओनली, है ना. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज गोइंग टू टेक वैल्यूज एज 0 1 2 3 अप टू व्हाट, अप टू n. ठीक है. n मस्ट बी द नेचुरल नंबर और r इज गोइंग टू बी एन एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 4 एंड अप टू n. ठीक. बोले सर ये NCR के लिए क्या होगा? NCR में भी सेम होता है. पढ़ा है ना आपने, क्लास 11 से 12th में आए हो. परमिटेशन कॉम्बिनेशन, काफ़ी विद्वान लोग मौजूद हैं शहर में. लेकिन NPR NCR के केस में अपने को बेसिक n और r क्या होता है? इट इज fx इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3. So this 7 minus x
n must be the natural number. So 7 minus x must be greater than equals to 1. We are aware of कि हाँ natural numbers होंगे, फिलहाल greater than equals to 1. And as far as this x minus 3 is concerned, वैल्यूज सारी इंटीजर वैल्यूज होंगे. आपने एनपीआर एनसीआर में कहीं फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं देखी, ये तो तय बात है. तो x minus 3 is greater than equals to 0 but less than equals to 7 minus x. If you solve this inequality, x is greater than equals to 3. If you solve this inequality, x less than equals to 5, इंटरसेक्शन जब ले रहे हो आप x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बट लेस देन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 और लेस देन इक्वल्स टू 6 में भी आ रहा है. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर देन? 3 वैल्यूज आर देयर. 3 to 6 में तो इनफाइनाइट होती है, बट यस वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ जब हम जो लिख रहे हैं. और 5, ये x की 3 वैल्यूज 3, 4 एंड 5. डोमेन अगर आपसे पूछता है तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन x की किन वैल्यूज के लिए 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 डिफाइंड है. डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज 3, 4, 5, these 3 elements, only these 3 elements या only these 3 numbers. But when we say range of that function, रेंज का मतलब होता है x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx. और उस केस में रेंज जब आप लिख रहे हैं फॉर x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पे 7 माइनस 3 p 3 माइनस 3 क्या बनेगा वो 7 माइनस 3 4 p0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 p0? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 4. ये बना नहीं था आप लोगों से, इसलिए ध्यान से देख लें थोड़ा सा. इफ x इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 4 3p1. व्हाट इज दैट 3p1? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3. And if x is equals to 5, 7 minus 5 which is 2, 2p2, 2 factorial upon 0 factorial, 0 factorial is 1, it is 2. So range अगर आपसे पूछी जाती है, range में there are 3 elements are there, 1, 2 and 3, and domain of that function 3, 4 and 5. The only point here is when you write NPR and NCR, ये ध्यान रखिएगा, this n must be natural number या positive integers beginning with 1, no fractional values are allowed. Clear cut बिल्कुल सी बात है. And when we say R is again going to be integer values only but including 0 and up to what? तो less than equals to n. कहीं भी आप ऐसा देखेंगे कि ऐसा कहीं नहीं होगा कि 7p8 मीनिंगलेस रहता उसकी, ठीक है ना. R must be from 0 to n including both values but integral values only 0, 1, इसीलिए इसको लिख दिया इस ढंग से 0, 1, 2, 3, 4 and up to n. और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है. ओके, दिस इज 7 माइनस एक्स, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 जब हम लिख रहे हैं तो ये क्लियर है हमारे दिमाग में कि नेचुरल नंबर्स ओनली, जो वैल्यूज आएंगी x की वो केवल वही वैल्यूज अलाउड हैं जो ऐसे नेचुरल नंबर रखें. तो 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या x लेस देन इक्वल्स टू 6 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स. सॉल्व किया तो x की वैल्यूज आ रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बट लेस देन इक्वल्स टू 5. तो 3 वैल्यूज आर देयर 3, 4 एंड 5 और ये 3, 4, 5 के करस्पॉन्डिंग आपने रेंज फाइंड आउट कर ली.
रेंज बेस्ड क्वेश्चंस और डिस्कस करने से पहले विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन मोर कंसेप्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट concept of application of derivatives. In fact, differentiation we have discussed about the dy by dx, how to calculate dy by dx, that we are aware of. क्योंकि जब हम रेंज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे या वन वन मेनी वन की बात करेंगे तो अगेन दैट डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज रिक्वायर्ड. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, बट इट इज रिक्वायर्ड इन फंक्शंस ऑल्सो. और यही कारण है कि डिफरेंशिएशन भी इन एडवांस पढ़ा दिया जाता है. y इक्वल्स टू एफ एक्स. इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस लॉगरिथमिक फंक्शन. जब हमने कहा था तो लॉगरिथमिक फंक्शन में इफ आई प्लॉट log x, एक छोटा सा रिकैप करूं मैं आपको. इफ आई से log x विद बेस a, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आस्क मी कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि प्लॉट दिस कर log x विद बेस a, तो आपको डायरेक्टली प्लॉट नहीं करना चाहिए, या फिर आपको अगर प्लॉट करते हैं तो दो केस बना के आपको प्लॉट करना चाहिए, because it depends on the value of base. If base is greater than 1, base अगर greater than 1 है, that function is an increasing function. In fact, it's a strictly increasing function. जब base की value greater than 1 है तो वो एक increasing function है. Strictly increasing as value of x is increasing, value of fx या value of y is also increasing. x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है ना. इफ आई टेक टू वैल्यूज हियर x1 एंड x2, तो आप बहुत ठीक ढंग से देख सकते हैं यहां पर कि x1 और x2 दो वैल्यूज अगर मैं लेता हूं, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो ये बात तय है कि log x2, log विद बेस a लिखा है तो वैसे ही लिखता हूं मैं यहां पर, log x2 is clearly greater than log x1. The reason is it is increasing function. ये टर्म्स हमने पहले भी डिस्कस करी है. ठीक है ना. If I say base is in between 0 and 1, लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, that's a decreasing function everywhere. 1 पे 0 बनेगा, ठीक है. दैट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. एज वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग, दिस इज x, दिस इज y. जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू यहां पर डिक्रीज हो रही है. दैट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन फैक्ट. तो ये टर्म्स हमने पहले भी यूज करी है. ठीक है ना. Here if I take two values of x, x2 is greater than x1, but in case of decreasing function, what should you write there? इनइक्वालिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर या लेस? तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. x2 x1 से बड़ा है तो log x2 log x1 से छोटा होगा, है ना. जब ये डिक्रीजिंग है और जब ये इंक्रीजिंग है, दोनों बात करी हमने. बट फिलहाल ये तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन, वी वेर अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, ये सब आपके नॉलेज में है. विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन जनरल इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड इफ हाउ कैन वी डिस्कस अबाउट द, ये ऑलरेडी आपके नॉलेज में है, सो नीड नॉट टू राइट अगेन एंड अगेन. If I discuss about the strictly increasing function or strictly decreasing function, what are the conditions there, and those conditions we are going to discuss in detail in length in the topic of applications of derivative. AOD is a separate topic जो भी काफी बड़ा टॉपिक होता है. तो ध्यान रखिएगा. if f dash x, if you take the derivative of that function fx, y equals to fx is some differentiable function, must be differentiable. फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल. फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब आगे बात हो पाएगी. तो इफ y इक्वल्स टू fx, that function is there. If you differentiate that function, if you are getting that f dash x is coming greater than 0 always, y equals to fx is there, and if you take the derivative of that function, and if that derivative is greater than 0 for whatever domain, जिस domain के लिए बात कर रहा है, if f dash x is coming greater than 0,
In that case, then fx is going to be, तब वो जो fx होगा is strictly increasing function. तब वो fx एक strictly increasing function होगा. If you take the derivative of that function and if it is coming negative, less than 0 आता है for the values of x which are there in the domain, जितने भी डोमेन में बात की जा रही है, if you take the derivative of that function and if it is coming negative, if it is coming less than 0, then fx is strictly decreasing function. राइट ये बहुत काम की बातें हैं फंक्शंस के केस में भी. इनफैक्ट ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जाके क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, ये बात होता है, क्योंकि तब उसी के बारे में आप डिस्कशन करेंगे. क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस, dy by dx के एप्लीकेशन, एंड व्हेन वी आर टेकिंग f dash x इज नथिंग बट द डेरिवेटिव के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं. तो f dash x this function is there. If I take the derivative and derivative is coming positive, strictly increasing function, अभी explain किया मैंने, as value of x is increasing, as value of x is increasing, this as value of x is increasing, value of fx या y is also increasing there. दो बातें इससे समझ में आती हैं, दो बातें इससे समझ में आती है कि you can decide the range and as well as you can decide if it is strictly increasing function. बड़े काम की बात है. That function is 1 always. अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेने पर if it is coming positive for whatever domain which has been given to you, अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस केस में इट्स गोइंग टू बी 1 ऑलवेज. इट इज देयर इन क्लास 12 ना, बहुत डिटेल में बात करना होगी तो हम करेंगे. 1 फंक्शन, any line parallel to x-axis is going to intersect the curve only once, or you can definitely say that different elements are having the different images there. No two elements are going to be having the same image there. होगा ही नहीं ना. As value of x is increasing, value of fx is also increasing. तो पहली बात तो it gives you the idea that okay it's a 1 function. And secondly, if domain of that function या interval of x which has been given to you as x1 to x2, अगर x जिस इंटरवल में आप डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स से इफ इट इज फ्रॉम x1 to x2, x2 बड़ा है x1 से, या सॉरी इंस्टेड ऑफ राइटिंग x2 बड़ा x1 से तो f of x2 f of x1 से तो क्लियर कट बड़ा होगा. बट इफ डोमेन इज गिवन टू यू एज x1 to x2 और मुझे अगर रेंज लिखना है तो मुझे बहुत आसानी से लिख देना चाहिए. रेंज का क्या मतलब हुआ, x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of x. तो रेंज क्या लिख देना चाहिए मुझे, रेंज x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी फंक्शन की विच इज f of x1, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी फंक्शन की विच इज f of x2. f of x2 is the maximum value of that and f of x1 is the minimum value of that, and it is going to take values from f of x1 to f of x2. यही तो रेंज है. x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ fx, दैट्स द रेंज. So it is going to take all values from f of x1 to f of x2. The max value is f of x2 or the minimum value that is f of x1. ठीक है ना. So you can decide about the range as well as 1 1 many 1. ठीक. Exactly in the same manner, if you take the derivative of that function and if it is coming less than 0, derivative of that function लेते हैं और वो derivative negative आता है, less than 0 आता है, that function is strictly decreasing function. And that उसी terms को clear करने के लिए मैंने I have given you the example of log x. यार देखो log का जो, क्योंकि हमने डिस्कस किया लॉगरिथमिक फंक्शन कि यार बेस ग्रेटर देन 1 होता है, बार बार यूज तो करिए उन टर्म्स को, तो हमने किया ही है यूज.
जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग. बेस की वैल्यू 0 से 1 तो दैट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ये हमने यूज और अभी करते रहेंगे, और वो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन तो फाइनली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही होगा, बट इट इज रिक्वायर्ड. तो एज वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, value of fx is also decreasing. To decide about 1 1 many 1, बोले सर ये many 1 ऐसा तो नहीं है. Again any line parallel to x axis is going to intersect the curve only once, and if it is, whether it is strictly increasing or whether it is strictly decreasing, in both the cases that function is a 1 1 function always. वो फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा. ठीक है. एंड टू डिसाइड द रेंज, लेट्स से द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन. सुनिएगा भाई, domain of that function is x1 to x2. If I ask you the range of that function, डेफिनेटली जो रेंज होगी x2 बड़ी वैल्यू x1 से, दैट्स फाइन. x2 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू विच इज f of x2 और x1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू विच इज f of x1, रेंज क्या लिखोगे आप इसमें? जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी f of x2 to f of x1. That's going to be the range. That's with the help of derivative. डेरिवेटिव की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है. देखिए, एज योर क्वेश्चन इज सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टर्म क्यों यूज करी है? द रीजन इज यहाँ पे टर्म्स में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी होगा. 3 टाइप के फंक्शंस की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और तीसरा नॉन डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक वैसे ही डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन. एज आई डिस्कस कि ये सारा डिस्कशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड होता है. ये क्लास 12th के टॉपिक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th में ही है सब कुछ. स्ट्रिक्टली इसलिए कहा जाता है कि दैट डेरिवेटिव इज कमिंग पॉजिटिव ऑलवेज. डेरिवेटिव इज कमिंग पॉजिटिव ऑलवेज फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, या whatever the values of x are there in the domain, that fx is always increasing. Derivative is coming positive always. वो जीरो भी नहीं होगा कभी. Strictly increasing, strictly जब टर्म आई है, that derivative cannot be zero. Derivative must be positive. Strictly increasing में, और strictly decreasing के केस में derivative must be less than zero. Less than zero में equals to zero भी टर्म नहीं आएगी वहां पर, वो strictly. So y equals to fx. अब मैं केवल एक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करूं आपको. एज आई हैव डिस्कस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इफ f डैश x इज कमिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सुनिएगा इस बात को ध्यान से. अब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के भी 2 केसेस हो सकते हैं. यहां पर भी 2 बातें आएंगी, एक होगा इंक्रीजिंग फंक्शन और एक होगा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 का मतलब कोई समझा सकता है? डेरिवेटिव एक्चुअल में dy बाय dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. डेरिवेटिव जो होता है दैट dy by dx, अगेन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा जाएगा, दैट f dash x रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट. दिस इज द कर्व, एंड इफ आई टेक f dash x विच जिस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, दैट डेरिवेटिव गिव्स यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ये tan थीटा के बराबर होता है. स्लोप क्या होती है? tan थीटा. f dash x इज नथिंग बट tan थीटा. तो f dash x is greater than equals to 0. If I say f dash x greater than equals to 0, अब की बार डेरिवेटिव यहाँ 0 भी बन रहा है. डेरिवेटिव 0 बन रहा है मतलब dy by dx 0 बनना. dy by dx 0 बनना मतलब
tan थीटा जीरो हो जाना, tan थीटा जीरो होना मतलब टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाना। और उस केस में दो बातें इसलिए हो जाती है कि मान लीजिए, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत लगेगी, इफ देर इज सम फंक्शन एफ डैश एक्स इज कमिंग पॉजिटिव, वो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, बट एट सम पॉइंट, एक पॉइंट है डोमेन में जिस पॉइंट पर जब मैं डेरिवेटिव लेने वाला हूं दैट विल बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो उस केस में आप एफ डैश एक्स जीरो भी मिल जाएगा आपको, डेरिवेटिव अगर एक्स जीरो हो गया तो डेरिवेटिव विल बिकम जीरो, सो एफ डैश एक्स बिकम्स, अदरवाइज तो ये हमेशा पॉजिटिव है, अदरवाइज तो इंक्रीजिंग है, एक पॉइंट पे जाके डेरिवेटिव जीरो बन गया, तो उस केस में हम कहेंगे ये कहा जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। इवन देन, अगर केवल इतना सा डोमेन है उसका, इवन देन ये फंक्शन इंक्रीजिंग होने के साथ ये 1 1 भी होगा, एंड यू कैन डिसाइड द रेंज जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था। बट इफ इट इज लाइक दिस, इस बात को समझेंगे तो काफी अच्छा लगेगा आपको, लाइक दिस, अगर मान लीजिए फंक्शन है, दोनों में डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। इधर भी एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इक्वल टू जीरो, दैट्स अ कांस्टेंट लाइन, ये लाइन है पूरी लाइन डेरिवेटिव लोगे तो दैट dy बाय dx विल बी इक्वल टू जीरो, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लेकिन इसमें एक बात जो ऑब्जर्व करोगे, ये फंक्शन कहलाएगा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। ध्यान से देखिएगा, इस फंक्शन को 1 1 कहा जा सकता है, इस फंक्शन को 1 1 नहीं कह सकते, तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। बिकॉज क्यों मेनी वन हो जाएगा? बिकॉज यहां पे एक इंटरवल है और उस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज की जो वैल्यू आ रही है वो फिक्स वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मोर देन वन वैल्यूज आर हैविंग द सेम इमेज, तो वो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग कहा जाएगा। डेरिवेटिव यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, लेकिन एक इंटरवल के लिए, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, एक इंटरवल है और उस इंटरवल में डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं रहेगा, नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा और वो मेनी वन हो जाएगा। यहां पर ये डेरिवेटिव जीरो बन रहा है लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जीरो बन रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर डेरिवेटिव जीरो बनेगा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था? इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। समझ रहे हो क्या इस बात को? एंड सेम इज हैपनिंग फॉर द डिक्रीजिंग ऑल्सो। व्हेन वी हैव सेड एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स अगर मैं लेस देन जीरो बोलता हूं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो बोलता हूं मैं, अगर केवल एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज कमिंग लेस देन इक्वल टू जीरो, यहां पर भी दो केसेस हो जाएंगे। कौन से दो केस? कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, डोमेन के कुछ पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो होगा, यहां पे भी डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग द डिफरेंट इमेज, वो तो ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहां पर जहां पर डेरिवेटिव जीरो बन रहा है। डेरिवेटिव जीरो बन रहा है मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी उस पॉइंट के ऊपर, तो डेरिवेटिव ये कहा जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहते हुए, इसको केवल डिक्रीजिंग कहा जाएगा। और यहां पर एक इंटरवल है x1 से x2 जिसमें डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो बनेगा, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा और ये फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अभी के लिए तो इतने डिस्कशन रखेंगे क्योंकि इट इज देयर इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी हम इसका जो यूज करेंगे वो, लेकिन ये हेल्प करेगा आपको रेंज और वन वन मेनी वन डिसाइड करने में, दोनों में। fx is equals to log of 3x square minus 4x plus 5 with base e. You have to find out the domain as well as range both. So what about the domain? Domain के लिए तो केवल इतनी सी बात है that log is defined for positive real values. So 3x square minus 4x plus 5 must be positive. क्या होगा डोमेन?
तो 3x square minus 4x plus 5 must be greater than 0. So if you calculate the discriminant of that, d is coming negative. A is positive but d is negative. So बिना कोई डाउट के that expression is positive for every real value of x. x की सारी real values के लिए पॉजिटिव होगा. डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज है, बट वी हैव टू डिसाइड अबाउट द रेंज. अब देखो रेंज में भी एक सीधी सी बात है, इट्स अ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड लॉग विद बेस ई. लॉग विद बेस ई अगर ये है तो लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस ई विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 1 2.7 के अराउंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. इट इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एवरीवेयर. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की रेंज में डिसाइड कर लेता हूं. मैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की रेंज डिसाइड कर लेता हूं, और उसके अकॉर्डिंग आई विल बी राइटिंग द रेंज फॉर log ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. तो ध्यान से देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, हाउ कैन वी डिसाइड द रेंज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5? कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स से इसको कुछ gx से डिनोट करता हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इट इज, ये तो एक पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x. इट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, एंड इफ यू रिमेंबर आई हैव गिवन यू द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दीस केसेस. इफ यू रिमेंबर द मिनिमम वैल्यू ऑकर्स एट वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला. वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस बी बाय 4a. याद है ना? उस समय अजीब सा लगा था आपको, टेंशन ना हो गया. ये एप्लीकेशन देखो आप, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a. तो जो रेंज की बात की जाएगी, gx की रेंज अगर पूछी जाती है, रेंज ऑफ gx, तो आप तत्काल कहेंगे माइनस डी बाय 4a, जो वर्टेक्स के ऊपर जो वैल्यू आ रही है y कोऑर्डिनेट अप टू इंफिनिटी. व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट प्लीज? सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? माइनस डी बाय 4a, माइनस डी बाय 4a, a की वैल्यू 3 है. प्लीज 11 by 3. What you are getting is 11 by 3 to infinity. बोले सर आ गई रेंज. नो, इट इज द रेंज ऑफ gx. मैंने इसे gx बोल दिया समझाने के लिए, केवल आपको समझाने के लिए. 11 by 3 to infinity. बट मुझे तो किस फंक्शन की रेंज चाहिए? लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज चाहिए. तो लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर रेंज चाहिए तो log x इज इंक्रीजिंग फंक्शन विद बेस e. x1 से x2 अगर मैं लिखता हूं, अब आपको कई बार समझा दिया, अगर x2 x1 से बड़ा है तो log x2 log x1 से बड़ा होगा. तय बात है. x1 से x2 में अगर मैं रेंज पूछूंगा आपसे तो log x1 मिनिमम वैल्यू होगी और log x2 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. यहां पे क्या लिखूंगा? रेंज इज क्लियरली गोइंग टू बी log ऑफ 11 by 3 टू इंफिनिटी. पे इंफिनिटी जाएगा वो. दैट्स द रेंज. यही तो रेंज है. आप कहेंगे सर मान लीजिए हम ये भूल गए कंसेप्ट की, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स वगैरह भूल गए सर, तब क्या करेंगे? फिर तो हम दिक्कत में आ जाएंगे. नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है. ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज देयर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना दोस्तों, वो भी समझ लीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 इंटू एक्स प्लस 5 बाय 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 इंटू एक्स. यहां पर आपको एड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 इंटू एक्स प्लस 5 बाय 3. 3 कॉमन लिया आपने. क्या एड सब्ट्रैक्ट करना होगा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 इंटू एक्स, 2 बाय 3 का स्क्वायर 4 बाय 9. एक्स माइनस
2/3 होल स्क्वायर प्लस आफ्टर टेकिंग द एलसीएम 15 और 11/9। ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। ध्यान से देखो रे, मिनिमम वैल्यू की जब बात की जाएगी, मिनिमम वैल्यू लॉगरिथमिक फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू कब आएगी? मिनिमम वैल्यू तब होगी जब x बाई x माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज देयर विच ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। मिनिमम होगा जब x की वैल्यू 2/3 0 होगा, तब ये 0 बन जाएगा और ये 0 बनेगा। 3 बाहर मल्टीप्लीकेशन में रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, घर जाना है जल्दी, पर देखिए इधर x माइनस 2/3 दैट विल बिकम 0, ये 3 इंटू 11/9 दैट विल बी 11/3, log 11/3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और उसके बाद तो आप मैक्सिमम की बात करोगे तो मैक्सिमम विल गो अप टू इन्फिनिटी, तो log 11/3 टू इन्फिनिटी। लेकिन हाँ, उसके लिए इतनी मेहनत करना पड़ेगी, और वही काम हमने एक लाइन में भी कर दिया। आप समझ रहे हो उस बात को, जो वर्टेक्स आपको परेशान कर दिया था कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया था करके, अब देखिए कितना रिलेवेंट है वो। अदरवाइज भी हो जाएगा वो, लेकिन इतनी स्टेप सॉल्व करना पड़ रही है उसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करके। आना दोनों चाहिए, अब आना तो दोनों ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं।